If you have sum of n terms of any sequence, it is basically a1 plus a2, first term, second term, third term, fourth term, and so on. And if I write it like this, a1 plus a2 plus a3, last but one term plus the last term. Sn is basically sum of first n terms. nth term के पहले n minus 1 term भी आएगा. This is what? This is basically sum of n minus 1 terms. The sum of n terms is equals to sum of n minus 1 terms plus the nth term. Switch on your cameras, everyone. Or Sn is equal to Sn minus 1 equals to the nth term. तो अगर हमें sum of n terms दे रखा है n के term में, we can always find the nth term also. We can also find the sum of all the terms as well, or sum of any number of terms also. एक बार इतना लिखो. Also, Sn would be summation of an, where n is 1 to n. Sum of n terms is always equal to summation of an and 1 to n. For example, sum of first natural numbers 1 plus 2 plus 3 till n is n into n plus 1 by 2, which is also summation n 1 to n. अगर हम n को summation करें 1 से n तक, so it will be always n into n plus 1 by 2. Sum of first n natural numbers. Then 1 square, 2 square, 3 square till n square. Sum of squares of first n natural numbers is always n into n plus 1, 2n plus 1 by 6, which you can also write this way, summation n square 1 to n. Then sum of cubes 1 cube, 2 cube, 3 cube till n cube. Sum of cubes of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2 the whole square, which is also summation n cube n 1 to n. And then we have sum of first odd numbers 1 plus 3 plus 5 plus 7 till 2n minus 1. And remember that is always n square. Summation of first n odd numbers 1 to n is always this. ये रिजल्ट तुम्हें याद होने चाहिए. Suppose तुम्हें दे रखा है sum that in a given sequence sum of first n numbers is 2n square minus 3n plus 5. ठीक है?
sum of first n numbers in a sequence is 2n square minus 3n plus 5, and the question is find the nth term. लिखो, find nth term, 20th term, and sum of first 30 terms. Find nth term, that is an, 20th term, that is a20, and sum of first 30 terms. Try करो. क्या हुआ, इतने कम लोग क्यों क्लास में आज? सबके एग्जाम चल रहे हैं? So you can use this formula. Sn minus 1 is equal to the nth term. है ना? वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो, Sn-1 निकालो, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा. एक मिनट दिखाना, इसमें नहीं है. हम्म, कहाँ किया हुआ है? अच्छा, देख क्वेश्चन में करा दिया. So nth term would be Sn minus Sn-1. Sn हमें गिवन है ऑलरेडी, 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 5 माइनस Sn-1 कितना होगा, 2 इंटू n-1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू n-1 प्लस 5. ओपन द ब्रैकेट, ये कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 3n कट जाएगा, 2n स्क्वायर कट जाएगा. क्या आ रहा है फाइनल आंसर, एंथम कितना आ रहा है? रैन, मेरा. I got 4n minus 5. So same. 4n-5 इज द nth टर्म. देखो, अगर nth टर्म में इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ n, दैट मींस दिस सीक्वेंस इज एपी. ये एपी है बेसिकली, है ना? A20 तो एक n को 20 डाल के आ ही जाएगा. A20 कितना आ गया, विल बी 75. 20th term is 75. What about sum of first 30 terms? 1715. 17. 15. Okay, perfect. लिख लिया? So that's Cn square. Yes. The sum of first n terms of an AP is Cn square. Then the sum of squares of these n terms is.
These are the options. Sum of force in terms of AP हमें given है CN square, उनके स्क्वायर का सम निकालना है. So you're not audible. I said, can you find nth term of the sequence? इस सीक्वेंस का nth टर्म निकालो. हमें क्या गिवन है? हमें बिकॉज इसको यूज करके सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज 3 अननोन है तुम्हारे पास A, D, N. सो यू कैन फाइंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बाय यूजिंग दिस रिजल्ट जो हमने अभी अभी किया था. Sn गिवन है हमें. यू बिन गिवन Sn, you find the nth term of the sequence. इस सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड कर लो. n को n-1 से रिप्लेस करो, सॉल्व कर लो. क्या आ रहा है देखो. n को n-1 होल स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया ना. सॉल्व इट. c कॉमन आ गया. दिस इज 2n-1. इस सीक्वेंस का nth टर्म ये है. हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इनके स्क्वायर्स का सम. मतलब we need to find summation of
ए एन स्क्वायर ये करना है मैं, जबकि एन की वैल्यू 1 से एन तक है। इन इस एपी के टर्म के स्क्वायर का सम निकालना है। तो आई हैव ए एन विद मी, एन को रिप्लेस कर दो इससे। तो समेशन एन की जगह क्या आएगा, सी स्क्वायर 2n-1 का होल स्क्वायर। सी तो कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देते हैं, इसको ओपन कर दो। 4n² -4n+1। बिकॉज एपी के हर टर्म के स्क्वायर का सम फाइंड करना था, तो हमने एन फाइंड करके उसको स्क्वायर कर दिया। The question was find the sum of squares of these n terms. And this result we have just done. S क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर तो बाहर है, समेशन को ओपन कर दो। 4 समेशन n², 4 × समेशन n प्लस समेशन 1। समेशन n² तुम्हें मालूम है क्या लिखा था अभी, समेशन n पता है, समेशन 1 पता है। समेशन 1 n होता है, लिख लेना उसी में। समेशन 1 इज बेसिकली n। समेशन 1 का मतलब 1 को तुम n टाइम्स ऐड कर रहे हो, 1 1 1 1 टिल n टाइम्स। Then I'll do a shortcut also for the same question. पहले एक बार मेथड से कर लो। अनुज बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? हमने यस सर। एन टर्म निकाला, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर उसका समेशन कर दिया। जो समेशन जब ओपन किया, n² आ रहा है वो तुम्हें पता है, n आ रहा है वो पता है, सबकी वैल्यू डाल दो। समेशन n² कितना था, n × n+1 2n+1/6। समेशन n कितना था, n × n+1/2। समेशन 1 इज n। n कॉमन ले लो, बाकी का एलसीएम ले लो, गलती मत करना, आंसर आ जाएगा। You take n कॉमन, ये आएगा।
देवेशी कौन सा आंसर आ रहा है? चेक करो ढंग से। सर मैंने जो निकाला था मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर रही हूँ क्योंकि मैच नहीं कर रहा। अच्छी बात नहीं है ये, मैच तो करना चाहिए। NC² 3 तो आ गया बाहर, इसको ओपन कर लेते हैं। सिक्स एन कट जाएगा, सो NC² 3 4n² +5 कैसे आ रहा है, कहाँ गलती हुई है? 2 से 2 काट दिया मैंने, 2 से 3 कट गया, 3 एलसीएम ले लिया। +5 - 6। हम्म। ठीक किया था आपने, +5 - 6 भी है लास्ट अच्छा, स्टेप। हाँ ठीक है ठीक है। सी इज द आंसर। आंसर इज सी ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, मेरा आ गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से कैसे करोगे, तो मेथड था इसका। एनी आइडिया फॉर शॉर्टकट, कोई बता सकता है? एन को लेट कर लेंगे। देखो, शॉर्टकट का मतलब है एन की कुछ वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। इसको मैं हटाता हूँ पहले। शॉर्टकट ये है, मैंने एन को सपोज ले लिया 3, ठीक है। उस सीक्वेंस में मान ली 3 टर्म्स हैं, और सिंस सम में n² आ रहा है, मैंने तुम्हें एक रिजल्ट दिया था, सम ऑफ ऑड नंबर्स इज n², ठीक है। तो मैं 3 ऑड टर्म ले लेता हूँ जो कि एपी में है। लेट द टर्म्स बी 1 3 एंड 5। मैंने n को 3 ले लिया, एंड लेट द एपी बी 1 3 5। एपी में है ये 3 - 2, 3 - 1 2 होता है, 5 - 3 भी 2 होता है, एपी में है। तो इसका सम हमें कितना दे रखा है? CN² दे रखा है। ये कितना हो गया? 9 इज इक्वल टू CN²। व्हाट इज n? n इज 3। तो मैंने n को 3 लेके इस तरह से c की वैल्यू निकाल ली। यहां तक बात समझ में आ रही है? हमने n को मिनिमम नंबर 3 ले लिया, और मैं कोई भी एपी ले सकता था, बट मैंने वो वाली एपी ली जो उसमें ऑड नंबर वाली एपी ले ली। मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे n² आ रहा था, तो ऑड नंबर वाली एपी में आई टुक 3 टर्म्स एज 1 3 5, उनको ऐड किया, 9 आ रहा है, CN² से रिप्लेस कर दिया, सी की वैल्यू 1 आ गई। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि इनके स्क्वायर का सम फाइंड करना है, मतलब 1² निकालना है, 3² 5² का सम निकालना है। देखो कितना आ रहा है ये, 25 + 10 35 आ रहा है। तो इनके स्क्वायर का सम 35 है। अब हमें क्या करना है? ऑप्शन में सी को 1 डालो, एन को 3 डालो, और फिर देखो कौन सा ऑप्शन तुम्हें 35 आंसर दे रहा है। आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस ओनली वन ऑप्शन गिव 35 एज आंसर। जिस ऑप्शन में 35 आंसर है वो सही है। दिस वॉज अ शॉर्टकट। पहले में डाल के बताओ, सी को 1 एन को 3 क्या आ रहा है? पुट सी एज 1 एन इज इक्वल टू 3। एन को 3 डाल के सी को 1 डाल के ए में कितना आ रहा है आंसर, एन? 35/2। हाँ, इट इज कमिंग 17.5। आउट 35/2। सो दिस ऑप्शन इज रूल्ड आउट, ये कट गया। सेकेंड ऑप्शन में डाल के देखो, सी को 1 एन को 3। एन को कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। 37। तो दिस इज ऑल्सो रूल्ड आउट। डी में डाल के देखो, डी में
सी में तो आएगा ही आएगा फॉर श्योर। डी में कितना आ रहा है? थर्टी सेवन बाई टू। सो दिस इज ऑल्सो गॉन। तो बाई चांस मान लो पहले तीन ऑप्शन में मैं डाल के देखा, उसमें 35 नहीं आ रहा है, देन उसके बाद तुम्हें फोर्थ ऑप्शन में डाल के टाइम वेस्ट नहीं करना है, वही आंसर है। अभी तुम देखोगे सी ऑप्शन में आंसर 35 आ रहा होगा, है ना? दैट इज आंसर। सो मेनी क्वेश्चंस यू कैन आंसर बाय शॉर्टकट ऑल्सो। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को तुम मेथड से सॉल्व करोगे। एलिमिनेट रॉन्ग वंस, जो बच जाएगा वो करेक्ट होगा। ये थोड़ी है कि जो नहीं बिल्कुल सॉल्व करके दिखाना है मेरा है, वो नहीं है। गलत एलिमिनेट कर दो, जो बच जाएगा वो तुम्हारा आंसर है। अगर दो तुमने एलिमिनेट कर दिए तो यू टेक ए चांस, चांस पे डांस कर लेना। अगर तुमने दो गलत आंसर एलिमिनेट कर दिए, देन यू ऑलवेज आंसर दैट क्वेश्चन, बिकॉज अगर हमने दो एलिमिनेट कर दिए बाय सिंपल लॉ प्रोबेबिलिटी, दो 50% सही 50% गलत, 6 क्वेश्चन किए, तीन सही, तीन में मिला 12 मार्क्स, तीन गलत -3 हो गया, 9 मार्क्स का मतलब योर रैंक शुड बाय 1000। 1000 में जिंदगी का फैसला हो जाएगा, इधर इनसाइड और आउटसाइड। तो सम केसेस में यू टेक चांसेस ऑल्सो। तो शॉर्टकट लिख लेना क्या किया था हमने। कुछ और भी शॉर्टकट सोच सकते हो तुम, जरूरी नहीं है बाई चांस एन को 3 डाल के हो सकता है दो ऑप्शन में 35 आ जाए, तो अगर टाइम है तो एन को 5 लेके कर लो, 1 3 5 7 9, है ना, 5 टर्म लेके, या फिर आंसर कर दो रिमेनिंग टू में से। वो डिपेंड करता है तुम्हारे पास टाइम है नहीं है उस समय। दिस क्वेश्चन इज मल्टी करेक्ट, मे इट माइट हैव वन मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। जेई पेपर वन में और टू में ये नहीं आते क्वेश्चन, एडवांस में आते हैं सिर्फ, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चन को कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा सही ऑप्शन पॉसिबल है। तो दिस इज मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। x is summation cos to the power 2n phi n 0 to infinity। n को 0 डालो, प्लस लिखो, फिर 1 सब्स्टिट्यूट करो, फिर प्लस लिखो, 2 सब्स्टिट्यूट करो, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सिमिलरली y निकालो, z निकालो। पहले ये देखो कौन सा सीक्वेंस है ये। इट इज cos phi to the power 2n। अगर n को तुम 0 डालोगे तो क्या आएगा? cos phi की पावर 0 1 हो गया, ठीक है। n को 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा? cos स्क्वायर phi। n को 2 सब्स्टिट्यूट किया, right, and so on. This is going till infinity. So it can't be AP. We don't have infinite AP. We have infinite GP. So this is infinite GP.
immediately should know what is the formula for sum of infinite GP. कॉमन रेशियो निकालो, फर्स्ट टर्म 1 है, सॉल्व कर लो क्या आ रहा है देखो, तीनों फाइंड कर लो। फाइंड x, फाइंड y, फाइंड z। तो इसका फर्स्ट टर्म 1 आ रहा है, कॉमन रेशियो कितना है, cos स्क्वायर फाइव, सो x इज इक्वल टू 1/1 माइनस cos स्क्वायर फाइव, x आ गया 1/sin स्क्वायर फाइव, और यू कैन ऑल्सो से दैट sin स्क्वायर फाइव इज 1/x। सिमिलरली y भी निकालो, z भी निकालो। सेकंड सीक्वेंस देखो अब जरा, स्कूल खुल गया। इस वाले से क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 1 प्लस sin स्क्वायर फाइव sin to the power 4 pi and so on. So this is again a GP, infinite GP. First term 1, common ratio sin square. 1 minus sin square 5 कितना हो गया, cos square 5. That gives you cos square 5 equal to 1 by y. Do it for z as well. थर्ड सीक्वेंस को करो अब। थर्ड सीक्वेंस का कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 1 प्लस cos स्क्वायर 5 sin स्क्वायर 5 cos to the power 4 pi sin to the into sin to the power 4। तो इस बार कॉमन रेशियो आ रहा है cos square 5 sin square 5, right? Z is this. We have found x, y, z all in terms of pi. ठीक है, अब जरा ऑप्शन की तरफ देखो, चारों के चारों ऑप्शन x, y, z, पहले तीन ऑप्शन तो सिमिलर से हैं ना, अगर तुम नोटिस करोगे तो x, y, z आ रहा है तीनों में लेफ्ट साइड में, तो ओनली वन ऑफ देम वुड बी करेक्ट मोस्ट प्रोबेबली, बट इसे मल्टी करेक्ट हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फाइव को हटा देते हैं, वहां से साइन स्क्वायर फाइव निकालो, वहां से कॉस स्क्वायर फाइव निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या आ रहा है। यहां से सब्स्टिट्यूट करो, z इज इक्वल टू 1/, कॉस स्क्वायर फाइव है 1/y, ये है 1/x, एलसीएम भी लेना पड़ेगा। सो टेक एलसीएम, एक्स वाई ऊपर आ जाएगा, xy-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, xyz minus z is equal to xy, that gives you xyz equal to z plus xy। एक ऑप्शन तो ये सही हो गया, xyz equal to z plus xy, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। तो अगर सेकंड सही है तो ये वाले दोनों सही नहीं होंगे, बिकॉज दैट्स आइडेंटिकल, लेफ्ट साइड एक्स वाई जेड है। फोर्थ ऑप्शन चेक करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा सॉरी, डी, डी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन आइडेंटिकल है ना, डी नहीं हो सकता, सी को चेक करना पड़ेगा, सी को चेक कर लो।
A, B and D आइडेंटिकल हैं, सिर्फ वन ऑफ देम विल बी करेक्ट. C को यू चेक, x प्लस वाई प्लस जेड को चेक कर लो. कैसे हो सकता है? रायन, लास्ट आंसर आ रहा है क्या? नो सर. बहुत नाइंसाफी है. देखते हैं. कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? लास्ट ऑप्शन, इफ आई ब्रिंग z on the left side and then simplify. Z is 1 over
1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है? ठीक है। एक्स इंटू वाई कितना होगा? कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव इन द डिनोमिनेटर -1। मैं सिर्फ एलएचएस कर रहा हूँ पहले सॉल्व। एलसीएम लोगों तो ये कट जाएगा, ठीक है? द मोमेंट यू टेक एलसीएम ये कट गया। दिस इज कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव। तो एलसीएम लेने के बाद ये पूरी टर्म कट रही है। हमारा आंसर आ रहा है एलएचएस में 1/cos स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव। लुक एट द आरएचएस नाउ। आरएचएस भी वही आ रहा है, 1/sin स्क्वायर फाइव प्लस 1/cos स्क्वायर फाइव। एलसीएम ले लो, cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 होता है, एंड यू गेट योर आरएचएस इक्वल टू एलएचएस। ऑप्शन सी भी बरोबर है, करेक्ट है ये। दो ऑप्शन सही थे इसके। दिस वाज आईआईटी एडवांस क्वेश्चन विच वाज रिपीटेड इन जे पेपर 1 रिसेंटली। जे पेपर 2 में भी आ सकता है ये। उसमें उन्होंने एक ऑप्शन दिया था सिर्फ, बी एंड सी बोथ आर द करेक्ट आंसर। लिख लिया चिराग? Yes, sir. ऑलराइट। The person is to count 4,500 currency notes. Let n be the number of notes he counts in the nth minute. If A1, A2, A3, A4 till an equals to 150, मतलब A10, sorry. मतलब एक मिनट, पहले मिनट में उसने 150 नोट काउंट किए, सेकंड मिनट में 150 काउंट किए, 10th मिनट में उसने 150 काउंट किया। तो पहले 10 मिनट में हर मिनट में वो 150 नोट काउंट कर रहा है, उसके बाद वो थक जाता है। एंड A10, A11, A12 and so on is an AP, are in AP with कॉमन डिफरेंस -2। मतलब वो 11th मिनट में 150 नोट नहीं काउंट करेगा, विल काउंट 148, दो कम करेगा। फिर 12th मिनट में दो और कम काउंट करेगा। मतलब वो नाउ इज टायर्ड, इज काउंटिंग लेस एंड लेस। द क्वेश्चन इज द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट ऑल द नोट्स इज, देन द टाइम
taken by him to count all the notes is, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, समझ लेना, देन यू स्टार्ट आंसरिंग इट। डोंट बी इन हरी। जितना समझने में टाइम लगाओगे उतना ही सॉल्व करने में फिर कम लगेगा। थिंक लाउडली, आंसर। पहले दिमाग में पिक्चर बना लो कैसे सॉल्व करना है, देन प्रोसीड। या तो तुम ये कर लो कि पहले 10 मिनट में कितने काउंट किए और उसको माइनस कर दो 45 मिनट में, रिमेनिंग नोट काउंटेड बच जाएंगे। उनके लिए n मिनट्स ले लो, फिर इसको सीक्वेंस बना के सॉल्व कर लो। एपी तो दे रखा है, तो पहले 10 मिनट में कितने काउंट किए वो देख लो। इन 10 मिनट्स, इसको हम टाइम में ऐड कर लेंगे। नोट्स ही काउंटेड कितने हो जाएंगे, 150 इंटू 10, मतलब 1500 नोट्स ने ऑलरेडी काउंट कर लिए। रिमेनिंग कितने बचे, 3000, है ना। उसके लिए तुम सीक्वेंस यूज कर लो। रिमेनिंग नोट्स हो गए 4500 माइनस 1500, दैट इज 3000। उसके लिए तुम एपी यूज कर लो। एपी तुम्हें दे रखी है, A11 से शुरू करेंगे है ना, A11, A12, A11, A12 एंड सो ऑन। मान लो रिमेनिंग एन 3000 नोट्स के लिए इसको n मिनट्स फर्दर लग रहे हैं। ही टेक्स n more minutes। तो फर्स्ट सम एपी की क्या होगी, 148। सेकंड क्या होगी, 146 एंड सो ऑन। तो दिस वुड बी एपी विद कॉमन, फर्स्ट सम 148, कॉमन डिफरेंस अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है -2, n हो जाएगा, एंड सम कितना हो जाएगा 3000। सम का फॉर्मूला लगा लो, सॉल्व कर लो। योर सीक्वेंस इज 148, 146 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म 148 होगा बिकॉज हमने 10 मिनट का ऑलरेडी ले लिया है। तो 3000 n/2, सम का फॉर्मूला यूज करो, 2a। ए कितना है 148, n-1 इंटू डी। 2 कॉमन लेके काट दो, सिली मिस्टेक मत करना बिल्कुल। तो जिसको हम क्या कर रहे थे, वेव पढ़ के आना। 2 थ्रू आउट कट जाएगा। कई बार आंसर से भी आइडिया लग जाता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होना चाहिए। क्वाड्रेटिक क्या आ रही है मिहिरा, क्वाड्रेटिक बन गई। Sir, n square minus 149 n plus 3000 equal to 0. n² - 149, N हाँ, plus 3000.
राइट। equal to 0. अब थोड़ी चीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। चीटिंग कैसे करेंगे? ऑप्शंस को जरा देखो। जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एक आंसर हमारा है। ऑलरेडी 10 मिनट्स निकल चुके हैं, तो इन ऑप्शन में 10 मिनट्स माइनस कर लेते हैं, बिकॉज जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 10 मिनट ऐड करना पड़ेगा मुझे। 24, 120, 115, 125 एंड 14, है ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में वो दोनों टर्म आनी चाहिए। 24 हो सकता है, 24 के साथ 115 आ सकता है। देखो क्या बन रहा है इससे। 149 नेगेटिव का है, प्रोडक्ट प्लस 3000 है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 149 और 10 मिनट मेरे को ऐड करने, मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। 24 हो सकता है, 120, 115 हो सकता है, 125। 125 प्लस 24 को मल्टीप्लाई करके देखो जरा। 125 और 24 को मल्टीप्लाई करके देखो, 3000 आता है नहीं आता है? क्योंकि डी मेथड से करोगे तो पागल से हो जाओगे बहुत, बाल बाल नोच लोगे अपने। ऑप्शन देखो, आंसर दे रहा है तुम्हें, उससे में आइडिया लग रहा है। अगर इससे 3000 आ जाता मतलब हमारा काम हो जाएगा। आ रहा है? बस दैट मीन्स शनाया, वहां पे तुम्हें मोबाइल फोन नहीं मिलेगा सॉल्व करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में ही मिलेगा, जे में नहीं मिलता है। तो सारी कैलकुलेशन खुद से करोगे तो बेटर रहेगा। तो 125n, 24n प्लस 3000। आईएससी बोर्ड में मोबाइल अलाउड है ना, कैलकुलेटर अलाउड है, नॉट मोबाइल। तो n माइनस 125 माइनस 24 कॉमन, n माइनस 125, दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास। एक आ रहा है 24, एक आ रहा है 125। इसमें 10 मिनट ऐड करने पड़ेंगे। 10 मिनट ऐड करने के लिए आंसर 34 होगा, दूसरा होगा 135। दोनों ऑप्शन में है, 34 भी है, 135 भी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सही आंसर कौन सा है। तो जो सही आंसर होगा इसमें हमेशा छोटा वाला आंसर होगा। आंसर वुड बी 34। आई टेल यू व्हाई छोटा वाला आंसर। जब भी किसी एपी में जहां पे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है, गिवन सम के लिए हमेशा दो आंसर आएंगे, एक छोटा आंसर आएगा, एक बड़ा आंसर आएगा। उसका रीजन क्या होता है कि उस एपी में कुछ टर्म्स पॉजिटिव होंगी, है ना, कुछ नेगेटिव हो जाएंगी, फिर कुछ पॉजिटिव हो जाएंगे उसके बाद टाइप्स। तो गिवन टर्म्स का सम अगर 3000 है, तो नेक्स्ट का सम भी 3000 हो सकता है। वाई? बिकॉज ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज नेगेटिव नोट तो वो काउंट नहीं कर सकता ना। इसीलिए 134 आंसर नहीं हो सकता। अगर इसमें तुम 125 वाली टर्म निकालोगी तो उसमें नेगेटिव काउंटिंग आएगी। इफ आई फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ही काउंटेड इन 125th मिनट, वो नेगेटिव आएगा। तो ये वाला आंसर तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो जब भी किसी एपी में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा, देयर विल बी टू आंसर फॉर अ गिवन सम, एंड योर आंसर वुड बी ऑल्सो द स्मॉलर वन। तो ये क्वेश्चन था। एचपी वगैरह सारा कोर्स से हट चुका है, वो आता नहीं है।
अगर फर्स्ट 20 टर्म्स की जगह फर्स्ट n टर्म्स अगर होता तो ये क्वेश्चन हम 2 सेकंड में आंसर कर देते। n को हम 1 डाल देते, ऑप्शन में डाल के देखते कौन सा वेरीफाई हो रहा है। लेकिन उसने पूछा है फर्स्ट 20 टर्म्स, तो उनका एक स्पेसिफिक मेथड है। अगर डेसिमल नहीं होता तब भी वही मेथड होता। इसको हमें जीपी में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे? सबसे पहले चुपके से 7 कॉमन ले लो। उसके बाद 9 से डिवाइड एंड 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर डेसिमल नहीं होगा तब भी ये मेथड वर्क करेगा। नंबर कुछ भी हो सकता है, ये एक प्रोसेस रहेगा उसमें। टेक द डिजिट कॉमन, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9। 9 1/9 को नीचे रखना है और दूसरे 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखो जीपी में कैसे कन्वर्ट करोगे। 0.9 को यू कैन राइट 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.0001, like that. अब मैं इसको सपोज n टर्म्स लेता हूँ, बाद में n को 20 डाल दूंगा, ठीक है। आई एम डूइंग इट फॉर n टर्म्स। तो जो 1 वाली सीक्वेंस हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 टिल n, माइनस साइन। दूसरी सीक्वेंस बन जाएगी 0.1, जिसको मैं 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। 0.01 आई कैन राइट 10⁻², 10⁻³ एंड सो ऑन। द सेकेंड सीरीज इज जीपी। जो सेकंड सीरीज है वो जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म है 10⁻⁻1 और उसका कॉमन रेशियो भी 10⁻⁻1 ही है। इट्स फर्स्ट टर्म 10⁻⁻1, कॉमन रेशियो is also 10⁻⁻1। 1 1 1 n टाइम्स ऐड किया, n हो गया। इसमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो। सम ऑफ n टर्म्स में जीपी होता है a r⁻n−1 ओवर r−1, और ऊपर नीचे का तुम -n कॉमन ले लेते हो, ये भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज द सेकंड फॉर्मूला बिकॉज कॉमन रेशियो 1 से छोटा है। तो a इज 10⁻⁻1, 1 माइनस r इज 10⁻⁻1 टू द पावर n बाय 1 माइनस r विच इज 10⁻⁻1। अब तुम चाहो तो n को 20 सब्सिट्यूट कर लो, सॉल्व कर लो। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सिली मिस्टेक मत करना, अदरवाइज +4 का -1 हो जाएगा।
ऑप्शन में 10⁻⁻20 हर जगह पे आ रहा है, तो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/10 लिख दो उसको, 10⁻⁻20 एज इट इज छोड़ दो, इसको 1/10 लिख लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो। ये हो जाएगा 9/10, 10 कट जाएगा। You can take LCM now. ये 200 नहीं 20 है ना। एलसीएम लिया तो 7/81 हो गया, 180। ब्रैकेट ओपन करा, कौन सा ऑप्शन सही है? सी। हम्म। चलो डिस्कस करूंगा मैं बाद में, देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा हाँ फर्स्ट टेस्ट को देखते हो, ठीक है। 50% इज गुड स्कोर। एनजेई, हाँ इट्स नॉट बैड 50%। एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ, बोर्ड की बात नहीं कर रहा। ना अगर सपोज ये एन के टर्म में होता तो हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। एन के टर्म में अगर ऑप्शन होते इस तरह से, तो हम एन को 1 2 3 डाल के ऑप्शन में डाल के देख ले कौन सा सही है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ शॉर्टकट तरीका इसका। मान लो सपोज क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, चार ऑप्शन होंगे उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एन को मैं 1 लेट कर लेता हूँ। एन को 1 लेट करने का मतलब क्या हुआ, ओनली वन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इसमें अगर तुम एन को 1 डालोगे तो तुम्हारा आंसर 0.7 आएगा। एन को अगर 2 डालते हैं सपोज, तो नो, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स 0.8, कितना हो गया, 0.7 प्लस 0.77, 1.47 आएगा फिर। तो एन को 2 डाल के इसमें 1.47 आंसर आएगा। तो शॉर्टकट अगर ऑप्शन एन के टर्म में होंगे हमेशा हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। पर आजकल क्या होता है, दे गिव फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स, 50 टर्म्स, 20 टर्म्स, वो नहीं हो पाता शॉर्टकट से।
There'll be integer type questions. 5 questions would be integer type out of 25. 20 would be MCQ. So this is integer type question. The sum of first 4 terms of a GP is 65 by 12. The sum of their respective reciprocal is 65 by 18. The product of the first 3 terms is 1. And the third term is alpha. Then 2 alpha is कर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा बस. जीपी दे रखा है. यू कैन स्टार्ट लाइक दिस. ए आर स्क्वायर AR क्यूब. बट प्रोडक्ट हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन फिर सम भी आ रहा है. सम में तुम्हें डिफिकल्टी आएगी. हाँ उससे आ जाएगा प्रोडक्ट, लेकिन फर्स्ट 4 टर्म का दे रखा है. ठीक है वो कर सकते हो. बट जब तुम सम करोगे तो वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी. सो इट्स विच एवर वे यू वांट टू डू इट कर सकते हो. तो 4 टर्म्स इन जीपी कैसे लोगे? नहीं नहीं नहीं, इल बी ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर स्क्वायर, AR एंड AR स्क्वायर, AR क्यूब. अगर तुम्हें फर्स्ट 4 टर्म्स इन जीपी लेनी है ताकि प्रोडक्ट में कट जाए, विल बी लाइक दिस. ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, AR एंड AR क्यूब. क्यूब होगा ना, स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज कॉमन रेशियो मैंने आर स्क्वायर लिया है. लेकिन फिर तुम्हें सम में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी. तो विच एवर वे यू वांट टू आंसर दिस. थर्ड टर्म तुम्हें दे रखा है, थर्ड टर्म अल्फा है. आएगा आंसर, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. कर लो, डू इट योर सेल्फ. कर लोगे. दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा. जिस भी मेथड से करो स्टिक टू दैट, हो जाएगा. दो ही तो अननोन है तुम्हारे पास.
और इनफैक्ट जो प्रोडक्ट है ना वो फर्स्ट 3 टर्म्स का ही दे रखा है, यही प्रॉब्लम है। या तो तुम 3 टर्म अगर लेना है तो 3 टर्म को तुम ऐसे भी लिख सकती हो। ए फर्स्ट टर्म को ले लो A/R, सेकंड टर्म को ये। हाँ लेकिन फिर तुम इसमें 4 टर्म भी मेरे को लेना पड़ेगा, वो AR² होगा। सम के लिए, सम के लिए लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा। हाँ इनफैक्ट AR तुम्हारा हो जाएगा अल्फा, ऐसे भी कर सकते हो। Ryan is saying answer is 3. Let me check. Yes, your answer is correct, Ryan. The first 4 टर्म्स का सम दे रखा है 65/12। उनके रेसिप्रोकल का सम 1/A, 1/AR, 1/AR², 1/AR³ is 65/18 दे रखा है। एलसीएम लिया होगा तुमने, AR³, ये है ना एलसीएम, R² एक मिनट, R³ होगा ना, R³ R², RN1 इक्वल टू 65/18। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, और क्या दिया हुआ है? हम्म, हाँ नहीं उस वाले मेथड से एक ही वैल्यू बनाएगी, मैंने दूसरा लिया है ये। ठीक है, हाँ तो यू कैन, यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, ए निकाल सकते हो। इनफैक्ट आई टेक ए कॉमन, 1 + R + R² + R³ इज इक्वल टू 65/12। तो यहाँ से यू कैन रिप्लेस, इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो। हाँ या तो ए रिप्लेस कर दो, या 1 + R + R² + R³ की वैल्यू रिप्लेस कर दो, 65/12A इसमें डाल दो। तो क्या आएगा ये, 65/12। या मुझे ए रिप्लेस करना चाहिए था, नहीं ये रिप्लेस करना पड़ेगा। 12A² R³ है ना, एक ए ऑलरेडी था ना वहाँ पे, 12A ना ये, 65 कट जाएगा, 6A कट जाएगा, तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया 2A² R³ इज इक्वल टू 3। देखो चेक करो इतना सही है। यहाँ से मैंने ए कॉमन लेके 1 + R + R² की वैल्यू 65/12 है, इस वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर दी, इसको रिप्लेस किया। अब एक और चीज दे रखी है उसने, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 1, वो कर लेते हैं। तो पहले 3 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा, A AR AR²